Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for all teaching exams. So let's start. First question: the prose work of Sir Thomas More include. Okay, तो A है friend the life of John Peacocks, and B है the game and play of the chase, and C है the history of Richard III, and D है both A and C. Okay, the prose work of Sir Thomas More included. So A है the life of John Peacocks, okay, and the history of Richard III. A and C will be right answer. So right answer is D, both A and C. Okay, next question: who among the following is well known for his mortality author? Okay, who among the following is well known for his mortality author? A है Mallory, B है Norton, C है Fisher, and D है Keats. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, Mallory. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: लॉन्ग कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कंटेम्पोरेरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स. तो ए है फ्रेंड रियलिज्म, बी है नरेटिव यूनिटी, सी है फ्रेंड फॉर फेचेट्स इमेजरी, एंड डी है ह्यूमर. ओके, तो लॉन्ग कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कंटेम्पोरेरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ its is narrative unity. Right answer is B. Next question: who among the following has been called the morning star of Reformation? Okay, so who among the following has been called the morning star of Reformation? A है friend Wycliffe, B है Mallory, C है Geoffrey Chaucer, D है William Caxton. तो morning star of the Reformation is the Wycliffe. Right answer is A. Next question friend: what is the significance of the name the War of the Roses? Okay, A है England and France both had the same national flower, the rose. B है the war occurred in the season of roses. C है the revival fractions, okay, in the war were symbolized by red and white roses respectively, and D है and rose symbolized the bloodness of the war. Okay, so what is the significance of the name the War of the Roses? The revival fractions in the war were symbolized by red and white roses respectively. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी. ओके, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज. ए है जेफरी चौसर, बी है लेडीगेट, सी है डगलस, सी है डी है गावर. तो द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज डगलस. राइट आंसर इज सी, भगवान. नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच ईयर वाज मोर यूटोपिया पब्लिश्ड? ए है 1416, बी है 1441, सी है 1476, एंड डी है 1416. तो राइट आंसर इज डी, 1416. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: रॉल्फ रॉबिन्सन ट्रांसलेशन ऑफ मोर यूटोपिया अपीयर्ड इन. ए है 1551, बी है 1581, सी है 1521, एंड डी है 1611. ओके, तो Ralph Robinson translation of More Utopia appeared in 1551. Right answer is A. Next question: Utopia is also known by the name. A है an unknown Iceland, B है the strange country, C है the world of imagination, and D है the kingdom of nowhere. Okay, right answer is D, the kingdom of nowhere. Next question: the tale of the Malevolence in the contemporary tales was told by. A है friend the owner of the inn, B है Chaucer himself, C है the clerk, and D है Persian. Okay, the tale of Malevolence in the contemporary tales was told by Chaucer himself. Right answer is B. Next question: the authorized version of the Bible is based on the translation made by. A है William Tyndale, B है Sir Pope John Paul, C है Wycliffe, and D है all of the above. So the authorized version of the Bible is based on the translation made by Tyndale. Right answer is A. Next question: the Spanish Armada was defeated in. A है 1465, B है 1488, and C है 1535, and D है 1588. Right answer is D, 1588. Next question: the Way of Perfect Religion was written by. A है John Wycliffe, B है John Fisher, C है John of Trevisan, and D है Ledigate. Okay, the Way of Perfect Religion was written by John Fisher. Right answer is B. Next question: Luther Wittenberg thesis were published in. A है 1398, B है 1417, C है 1517, and D है 1598. Right answer is C, 1517. Next question: Earl of Surrey was executed in. A है 1496, B है 1527,
एंड सी है 1547 एंड डी है 1596। राइट आंसर इज सी 1547। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु असेंडेड दी थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558। ओके, ए है फ्रेंड हेनरी 8, बी है मैरी, सी है एडवर्ड 6 एंड डी है एलिजाबेथ फर्स्ट। हु असेंडेड दी थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558 इज एलिजाबेथन फर्स्ट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोथ द प्रिंस ऑफ द मैकिवेली एंड द कोर्टियर ऑफ द कैस्टिलियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेनेसां स्पिरिट इन द सेंस दैट। ए है फ्रेंड बोथ एग्जाम्पली फ्री थिंकिंग एंड विगोरियस लाइफ। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी एक्सपेंडेशंस ऑफ द कोलंबस टू अमेरिका एंड वास्को डी गामा to India in the last decade of the 15th century may be attributed to A and intellectual curiosity, B है man mastery over the sea, C है lust for wealth and D है spiritual quest। ओके, तो इसमें जो होगा उसमें हो जाएगा फ्रेंड कि दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कोलम्बस और टू अमेरिका एंड वास्को डी गामा टू इंडिया इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 15th century may be attributed to the lust for wealth। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्ट्रेंथ द मोनार्च आफ्टर द वार ऑफ द रोजेज इन इंग्लैंड। तो ए है फ्रेंड एडवर्ड सेकंड, बी है हेनरी 7, सी है हेनरी 8 एंड डी है एलिजाबेथ फर्स्ट। राइट आंसर इज बी हेनरी 7। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए 15th century एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर। ए है फ्रेंड रोजर आसम, बी है मार्टिन लूथर, सी है मैकविल एंड डी है डाइटन। राइट आंसर इज ए रोजर आसम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हेनरी 8 क्वेरल विथ द पोप। ए है बिकॉज ऑफ द पोप corrupt and high-handed practices, B है because the Pope aspires for other empires, C है because the Pope did not grant him divorce from Queen Catherine and D है because of the general anti-clerical sentiment। Right answer is C because the Pope did not grant him divorce Queen Catherine। Right answer is C। Next question, Calvin whose flower। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्विन हुज फ्लावर इन इंग्लैंड। ओके, कैल्विन हुज फ्लावर इन इंग्लैंड हैव बीन कॉल्ड द स्पिरिचुअल एंसेस्टर ऑफ द ग्रेट प्यूरिटन मूवमेंट ऑफ द 17th century। वाज ए है जर्मन फिजिशियंस, बी है इटालियन रिफॉर्मर, सी है स्पेनिश फिजिशियन एंड डी है फ्रेंच रिफॉर्मर। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड फ्रेंच रिफॉर्मर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर किंगडम ऑफ नाउ वेयर वाज इंस्पायर्ड बाई। ए है फ्रेंड मैकविल द प्रिंस, बी है प्लेटो रिपब्लिक, सी है द बाइबल एंड डी है वर्जिल एनियड्स। राइट आंसर इज बी प्लेटो रिपब्लिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉल्ड दी फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पैसिफिस्ट। तो ए है विलियम टेंडल, बी है रोजर आसम, सी है मोर एंड डी है श्यूरेट। राइट आंसर इज सी मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द स्कूल मास्टर विच कंटेन्स हिज एडवाइस टू टीचर्स ऑन द टीचिंग ऑफ लैटिन। तो ए है रोजर आसम, बी है थॉमस बियार्ड, सी है मार्टिन लूथर एंड डी है जॉन वाइक्लिफ। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड रोजर आसम। Okay, next question, who completed the translation of the Bible began by William Tyndale। Okay, तो who completed the translation of the Bible began by William Tyndale। Okay, तो A है फ्रेंड रोजर आसम, B है थॉमस क्रैनर एंड C है इरास्मस एंड D है मिल्स कोवरडेल। ओके, तो who complete the translation of the Bible began by William Tyndale is माइल्स कवरडेल। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश प्रेयर बुक adopted as the official prayer book in 1549 was largely the work of A है वाइक्लिफ, B है टेंडल, C है क्रैनर एंड D है इरास्मस। राइट आंसर इज सी क्रैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड। ए है पेटार्च, B है व्याट, C है स्पेंसर एंड D है शेक्सपियर। तो हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड इज William Byatt। Right answer is B। Next question, beside the sonnet form what else was introduced by Byatt to England। तो A है फ्रेंड इटालियन तेजा राइमा, B है दी ऑक्टेव राइमा, C है दी एलिजी एंड D है बोथ A एंड B। राइट आंसर ही जो होगा फ्रेंड वो D हो जाएगा बोथ A एंड B, दी इटालियन तेजा राइमा एंड दी ऑक्टेव राइमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट यूज ऑफ द अनराइम्ड 10
syllabled line in English poetry through his translation of Virgil. Okay, तो 10 syllables line in English poetry through his translation of Virgil. तो ए है थॉमस ब्यॉर्ड, बी है थॉमस सैकविल, सी है फ्रेंड इसमें The Earl of Surrey and D है none of the above. Right answer is C, the Earl of Surrey. Next question, Queen Elizabeth ascended the throne of England in 1558. Right answer is C. Next question, which church was made a realty by Elizabeth in England? A है फ्रेंड दी एंग्लिकन, ओके, ए है दी एंग्लिकन, बी है दी कैथोलिक, सी है दी प्रोटेस्टेंट्स एंड डी है नन ऑफ द एबव. राइट आंसर इज ए, दी एंग्लिकन. राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड, ए राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रेटोरिक एक्सुबेरेंस एसोसिएट विद जॉन लिली एंड हिज कंटेम्परेरीज ओव्ड इट इंस्पिरेशन अल्टीमेटली टू. ए है फ्रेंड मैकवेली, बी है प्लेटो, सी है वर्जिल, डी है सीसेरो. तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, सीसेरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैवेस्टन अ मिक्सचर ऑफ दी मैकियावेली एंड दी टिम्बरलेन इज करेक्टर फ्रॉम. ए है डॉक्टर फास्टस, बी है एडवर्ड सेकंड, सी है फेरी क्वीन एंड डी है आर्केडिया. ओके, तो गैवेस्टन अ मिक्सचर ऑफ दी मैकियावेली एंड टिम्बरलेन इज करेक्टर फ्रॉम एडवर्ड सेकंड. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी टर्म इफ्यूसिज्म ओज इट ऑरिजिन टू दी फेमस करेक्टर ऑफ दी यूप्यूसियस ऑफ. ए है मार्लो, बी है सिडनी, सी है लिली एंड डी है नेस. तो राइट आंसर इज दी थॉमस लिली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ दी लिलीज यूप्यूस इज. तो ए है फ्रेंड इसमें बेस्टेरी, बी है दी अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, सी है दी विंटर टेल एंड डी है दी एंटोनी ऑफ विट. राइट आंसर इज डी, दी एंटोनिम ऑफ विट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेनेसन पोएट वाज किल्ड एट द बैटल ऑफ दी जूट फैन. तो ए है सिडने, बी है सैकविल, सी है लिली एंड डी है नेस. राइट आंसर इज ए, सिडने. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिडने आर्केडिया इज. ओके, तो ए है फ्रेंड पैथोस, बी है पैथेटिक फैलेसी, सी है फ्रेंड यूफिज्म एंड डी है कॉन्क्रीट इमेजिनरीज. राइट आंसर इज बी, पैथेटिक फैलेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एलिजाबेथन लव फॉर पिकोरिश डिस्क्रिप्शन वाज इनहेरिटेड फ्रॉम. ए है ग्रीस, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस एंड डी है इटली. राइट आंसर इज डी हो जाएगा, इटली. ओके, आगे देखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एंड प्रोज वर्क ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड इज सिडने एपोलॉजी फॉर पोइट्री पब्लिश पाथोमोसली इन. तो ए है 1585, बी है 1586, सी है 1595 एंड डी है 1596. राइट आंसर इज सी, 1595. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ राइम वाज रिटन बाई. ओके, ए है फ्रेंड फिलिप सिडने, बी है सैमुअल डैनियल, सी है रॉबर्ट ग्रीन एंड डी है थॉमस डेकर. तो द डिफेंस ऑफ राइम वाज रिटन बाई इज सैमुअल डैनियल. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन दोस्तों विच सप्लाइड द प्लॉट ऑफ द शेक्सपियर द विंटर टेल इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांस ऑफ. ए है सीसेरो, बी है मार्लो, सी है ग्रीन एंड डी है नेस. राइट आंसर इज सी, ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन एज द क्रिएटर ऑफ ए न्यू जनरा द पिकारिस नॉवेल. ए है लिली, बी है ग्रीन, सी है डेलोनी एंड डी है थॉमस नेस. राइट आंसर इज डी, थॉमस नेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ द Analytical quality has been said to be one of the first masterpieces of English prose. Who was its author is Richard Hooker. Right answer is B. Next question, the authorized version of the Bible was the work of Bishop Andrews. Okay, Bishop Andrews. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the great essayist who had once said that the vernaculars would one day play and the bankrupt with books is A है बेकन, B है जॉनसन, सी है स्टील एंड डी है रैलीज. राइट आंसर इज ए हो जाएगा बेकन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. इन बेकन न्यू एटलांटिक्स the place where scientists devote themselves to the advancement of knowledge is. तो ए है वेम्बरले, बी है सोलेमन हाउस, सी है दी रॉयल सोसाइटी एंड डी है स्पेन. राइट आंसर इज बी, सोलेमन हाउस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन हैड borrowed the term essay from the French writer is ए है ड्यू म्योंग, बी है गौथी, सी है मॉन्टेंग एंड डी है डी लोरिस. राइट आंसर इज सी हो जाएगा मॉन्टेंग. बेकन हैड borrowed the term essay from the French writer is
Montaigne. Okay, right answer is C. Next question, Bacon published the first edition of this essay in A 1589, B 1597, C 1612 and D 1625. Bacon published the first edition of this essay in the 1597. Right answer is B. Next question देखेंगे, virtue is like precious occur more fragrant when they are the scented or cured. This is a typical extract from is Bacon. Right answer is D. Next question देखेंगे, the greatest demerits of Bacon as an essayist when compared to Montaigne or Lamb is his lack of personal touch. Right answer is C. Next question देखेंगे, nakedness is uncommonly as well in mind as in body. The statement is an English of Bacon is the prudence. Right answer is D. Next question, who is called the first great stylist in English prose? तो A है लिली, B है सिडनी, C है बेकन एंड D है ड्राइडन. राइट आंसर इज सी हो जाएगा बेकन. ओके, आगे देखते हैं. द सिविल वार पब्लिश इन 1595 एंड बेस्ड ऑन द वार ऑफ द रोजेस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क ऑफ A है सैमुअल डैनियल, B है माइकल राइटन, C Edmund Spenser and D Earl of Surrey. Okay, the Civil War published in 1595 and based on the War of the Roses is the most characteristic work of the Samuel Daniel. Right answer is A. Next question देखते हैं friend. Drayton is regarded as the first to the poet's geography in his. A है the Borean War, B है Polyolbion and C है the New Atlantic, D है Miscellany. Okay, the Drayton is regarded as the first to the poet's geography in his Polyolbion. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द हीरो ऑफ द फेरी क्वीन. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द हीरो इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन. ओके, ए है प्रिंस ऑथर, बी है प्रिंस एडवर्ड, सी है हेनरी सेवन एंड डी है स्पेंसर हिमसेल्फ. हु इज़ द हीरो इन स्पेंसर फेरी क्वीन इज द प्रिंस ऑथर. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.